children. Today we are going to start a new lesson from your English course book. That is lesson number 2. So children, take out your books and get ready. So I hope children, all of you have taken out your books. Open page number 22. The name of the lesson is The Ant and the Grasshopper. So children, before starting the lesson, let's complete this activity. Children, you can see there are pictures of some common creatures. You have to choose the correct name from the box and write in the blanks below. Tick the ones you have seen around you. Okay? Children, you can see there is a box and that box the names of all the creatures are given. वहाँ से आपने पिक करना है जो भी क्रीचर्स आपको दिख रहे हैं उसका करेक्ट नेम लिखना है और टिक लगाना है अगर आपने उनको देखा है. So first one is, yes, it is an ant. So what you are going to do? You have seen ant? Yes. आजकल तो बहुत सारी चींटियाँ होती हैं जहाँ भी खाना थोड़ा सा गिर जाए वहाँ पे उसी टाइम चींटियाँ आ जाती हैं. देखी है ना? तो आपने क्या करना है? You will put a tick mark. Next is mosquito. मॉस्किटो भी सबने देखा है ना? मॉस्किटो क्या होता है? मच्छर. तो आपने वहाँ पे मॉस्किटो लिखना है and you will put a tick mark. Next is housefly. So what you're going to do, you're going to write and all of you have seen. So put a tick mark. Next is butterfly. Have you seen butterfly? Yes. All of you have seen different colors of butterfly, isn't it? So you will write the name and put a tick mark. Next is ladybird. Ladybird हो सकता है किसी ने आ भी देखी हो तो आपने क्या करना है नेम तो लिखना ही है सबने और जिसने नहीं देखी है वो टिक मार्क नहीं लगाएगा. ओके. नेक्स्ट इज बी. सो बी यू विल राइट द नेम एंड देन you will, if you have seen, you'll put a tick mark, otherwise you will leave it, but you have to write the name. This way you are going to complete this page. Okay children. So now shall we start the story? Yes. So before starting the story, all of you should pay attention when I read the story. Okay. So let's get started. Okay. It was a bright day in summer. A green little grasshopper was hopping about merrily in a field. कैसा डे था? Bright day. Bright day means when there is a sun and sun is giving its light. सब जगह से रोशनी आ रही है और गर्मियों का महीना है, समर सीजन है. वहाँ पे एक लिटिल ग्रास हॉपर, एक छोटा सा ग्रास हॉपर, बड़ा प्यारा सा ग्रीन कलर का, वॉज हॉपिंग अबाउट मेरली इन अ फील्ड. वो हॉपिंग कर रहा था. हॉपिंग मीन्स जंपिंग. जंपिंग कर रहा था और वो बहुत हैप्पी था और इन्जॉय कर रहा था. कहाँ पे? फील्ड में. It was chirping and singing to itself without a care in the world. It was chirping and singing. वो बहुत मज़े कर रहा था. छोटी छोटी क्राइज चिल्ला रहा था, चीखे मार रहा था, गाने गा रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था और किसी की परवाह नहीं कर रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कोई मुझे देख रहा है या नहीं. वो अपना एंजॉय फुल मस्ती कर रहा था. Soon it saw ants passing by. तभी उसने क्या देखा? कुछ ants जा रही हैं वहाँ से. The ants were dragging home grains with great difficulty. Ants क्या कर रही थी? वो ग्रेन्स लेकर जा रही थी. ड्रैगिंग मीन्स खींच कर लेके जा रही थी. और कहाँ लेके जा रही थी? अपने घर. बहुत मुश्किल से, बहुत अपना एफर्ट लगा रही थी और बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, कॉर्न, कनक, अनाज, ये चीज़ें होती हैं, ये अपनी शोल्डर्स पे रख कर बड़ी मुश्किल से खींच कर अपने घर तक पहुंचा रही थी. You seem to be working very hard. Why not come and chat with me? Said the grasshopper to one ant. तभी grasshopper ने क्या कहा कि मुझे दिख रहा है कि आप लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो. इधर आ जाओ मेरे पास. चलो हम लोग इंजॉय करते हैं, बातें करते हैं. देखो मैं कितनी मस्ती कर रहा हूँ. बहुत इंजॉय करेंगे हम सब मिलकर. Why don't you enjoy the bright summer day?
तो कहता है कि आप इतना अच्छा समर डे है, देखो इतना अच्छा सन निकला हुआ है, हम इंजॉय करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करो। I am helping to store food for the winter, said the ant. एंट क्या कहती है उसको कि मैं क्या कर रही हूँ, बहुत सारा खाना स्टोर कर रही हूँ। किस लिए? विंटर सीज़न के लिए। विंटर्स में जब स्नोफॉल होगी तो मुझे घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, मैं अपने घर में आराम से बैठ के जो मैंने फूड कलेक्ट किया है उसको मैं खाऊंगी और इंजॉय करूंगी अपने घर पे बैठ के। यू शुड ऑल्सो डू द सेम। एंट ने ग्रास हॉपर को क्या कहा कि मैं जो कर रही हूँ वो आप भी करो, आप भी अपने लिए फूड इकट्ठा करो जिससे विंटर सीजन में आपको भी बाहर ना निकलना पड़े। वाई बॉदर अबाउट विंटर, सेड द ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर क्या कहता है, इतनी चिंता क्यों करनी है, इतनी टेंशन मत लो विंटर सीजन की, है ना, इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, देखो कितना मज़ा आ रहा है। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड नाउ। तो वो क्या कहता है कि मेरे पास बहुत सारा खाना है इस टाइम, तो इसलिए विंटर सीजन की टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सारा खाना है, एंजॉय करो, मस्ती करो। बट द एंट वेंट ऑन इट्स वे डूइंग इट्स वर्क। एंट क्या करती है, एकदम भी ध्यान नहीं देती है और वो जो अपना काम कर रही थी उसको करती रहती है। क्या कर रही थी वो? यस, हाँ जी बताओ क्या कर रही थी? फूड कलेक्ट। किस लिए? विंटर सीजन के लिए। और अभी कौन सा सीजन चल रहा है? यस, समर सीजन। समर सीजन में वो फूड कलेक्ट कर रही है विंटर सीजन के लिए। ओके, when the winter came, the grasshopper had no food and found itself dying of hunger. फिर जब विंटर सीजन आता है तो ग्रास हॉपर का सारा फूड फिनिश हो जाता है और उसे अब बहुत भूख लगती है पर खाना है नहीं। अब क्या खाए वो? और उसे लगता है अब तो मैं भूखा मर जाऊंगा, अब तो मैं नहीं बच सकता, मैं तो मर ही जाऊंगा। The ants happily ate up the grains from the store they had collected in the summer. और ants वहाँ पे क्या कर रही थी? बड़ी हैप्पीली, बहुत मज़े कर रही थी। और कहाँ से खाना ले रही थी? जो उन्होंने कलेक्ट करके रखा था अपने स्टोर में, वहाँ से खाना ले रही थी और खा रही थी और विंटर सीजन को एंजॉय कर रही थी क्योंकि उनको अब कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ रहा था, अपने घर में आराम से रह रही थी। Then the grasshopper knew why the ant had worked so hard on a bright summer's day. तब उस ग्रास हॉपर को समझ आया कि वो एंट इतना हार्ड वर्क क्यों कर रही थी। उसके सीज़न में, समर सीज़न में इतना हार्ड वर्क कर रही थी, फूड कलेक्ट कर रही थी। अब उनको आराम हो गया, अब उनके पास बहुत सारा फूड है और वो आराम से इंजॉय कर रही हैं और विंटर्स में बाहर भी नहीं निकल रही हैं अपने घर पे और अपने घर पे रहकर फूड को इंजॉय कर रही हैं। Children, I hope you all have enjoyed the story. Now what you are going to do is you are going to read the lesson. Okay? Thank you.